Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about types of changes. Basically there are two types of changes. First one is called physical change while second one is called chemical change. Physical change are the change in which only physical properties of a substance are changed and no new substance is formed or called physical change. Most of the physical change are reversible. This means that we can get the substance back even after the change. While the chemical change are those change in which chemical properties of a substance are changed and no new substance is formed or called chemical change. Most of chemical change are irreversible. We also discuss some of the example of physical as well as chemical change. The first example of physical change are melting, freezing, evaporation, boiling, condensation, and all these are physical changes. Whenever something like wood, coal burn, new substance like carbon dioxide, water or form. Such type of reactions in which a substance change into other substance are called chemical change. We also discuss about some of the more example of physical change like burning of water. We see that boiling of water. When water we heat, it convert in from liquid state to into vapor state, which confirm that boiling of water is physical change. Crushing a can. Crushing an aluminum can change its shape and size, but still it remains aluminum, which confirm that it is a physical change. Melting of wax. Melting of wax, solid wax change into liquid, which state that here just state is change and it is a physical change. Stretching a rubber band is also a physical change. And dissolving salt in water. When we dissolve salt in water, it forms solution and which we can easily separate it by evaporation or distillation, which confirm that these are physical changes. Now dear student, in this lecture we discuss about some more example of chemical changes and explain these changes. Some of the most important example of chemical changes are burning. We see in our daily life that when we burnt coal, wood, petrol, etc., कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और फॉर्म. डियर स्टूडेंट, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर लकड़ी हो गई, वुड हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. होता क्या है यहाँ पर, वुड एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इट्स मीन दैट कोयल, वुड एट्सेट्रा आपके पास किसी और केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया. और हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक चीज़ किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही हो तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज. सो बर्निंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. नाउ सेकंड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स. मिल्क को अगर आप कर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली मिल्क कर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की मदद से आपके पास मिल्क कर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होता है. अब प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ जो मिल्क होती है वो कर्ड से टोटली डिफरेंट होती है. मिल्क जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती हैं या उसकी कंपोजिशन कुछ और होती है, लेकिन जो कर्ड्स बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिफरेंट बन जाती हैं. तो इट्स मीन दैट यहाँ भी आपके पास मिल्क से कुछ और चीज़ बन रही है, तो यहाँ भी आपके पास सब्सटेंस चेंज हो रहा है. तो इस किस्म के चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज. सो वी कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स इज एज अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड. फूड की डाइजेशन जो होती है ये भी आपके पास बच्चों केमिकल चेंज है. किस तरह, लेट्स सपोज हम कोई भी फूड खाते हैं तो फूड हमारे बॉडीज़ के अंदर जो एंजाइम होते हैं एक्चुअली वो हमारी फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं छोटे छोटे फूड्स के अंदर. लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को हमारे छोटे स्मॉल फूड पार्टिकल्स के अंदर
कुछ एंजाइम कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, बड़े फूड मालिक्यूल से आपके पास कुछ और फूड मालिक्यूल बन रहे हैं। बड़े फूड मालिक्यूल से लेट्स सपोज आपके पास लेट्स सपोज आप शुगर खाते हैं। शुगर C6H22O11 इसका फार्मूला है। आपके बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो वहाँ पर एंजाइम इसको तोड़कर 2 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब 2 ग्लूकोज से बन के शुगर बनते हैं और शुगर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब यहाँ पे ग्लूकोज और शुगर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि यहाँ भी आपके पास केमिकल चेंज हो रही है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ से दूसरी डिफरेंट चीज़ बन रही है जिसकी केमिकल नेचर डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। जैसे कि स्टूडेंट आपने पिछली ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं, कंपाउंड न्यू कंपाउंड बनाते हैं। न्यू कंपाउंड का मतलब है हमारे पास यहाँ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब जितने भी आपके पास ग्लूकोज हैं वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर और ग्लूकोज की नेचर कम्प्लीटली आपस में डिफरेंट होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ भी हमारे पास कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ भी हमारे पास केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस 2 इन्वर्स फिनोमेना हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस में आपके पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन होती है। लेट्स सपोज हम ऐसी फूड्स वगैरह को यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट हो। अब ग्लूकोज जितना भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन होती है और हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिस्पायरेशन में आपके पास क्या हो रहा है, विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ग्लूकोज आपके पास अदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और जिनकी नेचर आपके पास कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट रिस्पायरेशन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ chemical change. And the last and the most important example is rusting of iron. Dear student, आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम मोस्टली किसी भी मेटल को एक बाहर ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर सा आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं रस्ट, जिसको हम अपनी उर्दू में कहते हैं जंग लग जाता है। किसी भी लोहे को आप अगर बाहर ओपन इन्वायरमेंट में कुछ अरसे तक रखते हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। और जो रस्ट होता है उसकी जो केमिकल नेचर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है आपके पास केमिकल नेचर ऑफ आयरन। बोथ द केमिकल नेचर ऑफ आयरन and rust is completely different from each other, so that's why we can say that formation of rust is a chemical change. When we leave an object made up of iron in open air, a reddish brown color appear which is called rust. Now student, इन एग्जाम्पल के बाद हम इनके बीच में फिज़िकल और केमिकल चेंज के बीच में एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एक साइड पे हमारे पास फिज़िकल चेंज, सेकंड साइड पे आपके पास है केमिकल चेंज। बच्चों, फिज़िकल चेंज में आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, लाइक साइज़, शेप, डेंसिटी, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है। दीज आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, मीन टू से एक केमिकल दूसरे केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो केमिकल नेचर या केमिकल जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस, कोई और सब्सटेंस नहीं बनता बल्कि वही सब्सटेंस की या शेप चेंज हो जाती है या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी को हम बॉयल करते हैं तो आपके पास गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी गैसियस फॉर्म को आप दोबारा
गैसियस फॉर्म वाटर और आपके पास जो लिक्विड वाटर था उसकी नेचर आपके पास सेम रहेगी, जस्ट स्टेट चेंज हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो आपके पास उस चीज़ से डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी से आपके पास एशेज़ वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी नेचर वुड से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और मोस्टली आपके पास जितने भी फिज़िकल चेंज होते हैं वो आपके पास रिवर्सेबल चेंज होते हैं और रिवर्सेबल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पानी को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उस गैसियस फॉर्म को दोबारा मैंने कूल किया, आपके पास दोबारा वाटर बन गया। लेकिन जितनी भी आपके पास मोस्टली आपके पास जो केमिकल चेंज होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लकड़ी को मैंने जलाया, दोबारा उस एशेज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या आप मुझे दोबारा लकड़ी बना के दे सकते हैं? नहीं। तो इस किस्म की चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल, एंड मोस्टली केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। So dear student, these are some of the main points of today's lecture. Now let's come to the homework and main points of today's lecture. Dear student, आज के लेक्चर के हमारे जो मेन पॉइंट्स है उसमें पहला मेन पॉइंट्स है बर्निंग। We see that when something like wood, petrol or burn new substance like carbon dioxide and water are formed, which confirm that the nature of carbon dioxide and water are completely different from the wood or coal, which confirm that it is a chemical change. Conversion of milk into curds. Milk change into curd by the action of bacteria properties and composition of milk and curd are totally different, which confirm that it is also a chemical change. Third main point, digestion of food. Digestion of food is also a chemical change. Digestion of food takes place by the action of enzyme. When with the help of enzyme, large food molecules are broken down into small food particles, which confirm that large food molecules and the nature of small food molecule are completely different with each other, so that's why it is also a chemical change. Fourth main point is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants make new compound like glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Here, the formation of glucose is formed. Formation of glucose due to carbon dioxide and water. Here, the carbon dioxide and water nature is completely different from the nature of glucose, so that's why we can say that it is also a chemical change. Fifth main point, respiration. Respiration is the inverse phenomenon of photosynthesis. In respiration, glucose molecule is broken down into other food molecules and with the release of energy by using oxygen. ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन आपके पास हो जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. Here oxidation of glucose is occur, so that's why we can say that it is also a chemical change. Rusting of iron. We see that when we expose an iron rod or iron object in environment, after some days a reddish brown color appear on that iron, and that is actually called as rust. We see that the chemical nature of rust and iron are completely different from each other, so that's why we can say that it is also a chemical change. So this is all about today's lecture. Now come to the homework. Dear student, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of change. इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है कि जो बर्निंग ऑफ वुड है और कटिंग है, किसी भी वुड को आप जला रहे हैं और उस वुड को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. आप ये बताएं कि इनमें किस किस्म के चेंजेस आपके पास हो रहे हैं. केमिकल चेंज कौन सा है और फिज़िकल चेंज कौन सा यहाँ पे हो रहे हैं, या दोनों फिज़िकल चेंज है या दोनों केमिकल हैं. तो इसका आंसर आपने प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर लिखना है. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. इसके अलावा अगर कोई भी आपको बात अनक्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.